Hello everyone, so I am Yamini Seni. We were doing this class 9 English Moments book chapter number 1, The Lost Child, which was written by Mulkhraj Anand. So today we have to discuss these question answer. So let us start with our first question, that is, what are the things the child sees on his way to fair? Why does he lag behind? वो बार बार पीछे क्यों छूटा जा रहा था और वो क्या क्या चीज़ें देख रहा था? So on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. जो जो चीज़ें आ रही थी मेले में, चाहे वो स्नेक चार्मर है, गुलमोहर के फूल हैं, या बलून सेलर है, या मिठाई है, तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो पीछे छूटा जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स. वॉट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? से इस फेयर में काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी. वो क्या क्या चीज़ें थी और वो बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़े जा रहा था, क्यों? So the child wants many things in the fair. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the roundabout also. That big swing, we can say. He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call. Come child, come. और उसके पेरेंट्स जैसे ही वो रुकता तो इसीलिए बिना जवाब के वो आगे बढ़ता जाता था, उसके पेरेंट उसे बुला लेते थे, राइट, कि आओ बच्चे आओ. और उसे मतलब उसे पता था कि उसके पेरेंट जो है उसकी इस बात को नहीं मानेंगी. उसे कुछ ना कुछ जैसे चीप या फिर कि ये बच्चों के लिए होता है, इस तरह से करके टाल देंगे. सो दैट इज़ वाई ही डिडंट वेट फॉर अ आंसर. Question number 3, when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? तो वो उसे कब कब उसे रियलाइज़ होता है, कब उसे पता चलता है कि वो खो गया है, अपना रास्ता वो भूल गया है, और किस तरह से एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी जो है वो डिस्क्राइब की गई है स्टोरी में. So the child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. So he wants to have a ride on it. He asks his parent for permission to enjoy it. Having no response on the part of his parent, he realizes that he lost his way. जब वो राउंड अबाउट की ज़िद करता है और तब वो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो तब उससे रियलाइज़ होता है कि वो अपना रास्ता भूल गया है. ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रशेस runs here and there in search of them. So this is a phrase which was used in the story to describe his anxiety and security. Question number 4, why does a lost child lose interest in things that he had wanted earlier? कि क्यों उसका जो इंटरेस्ट है वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है उन चीज़ों के प्रति जो वो पहले लेना चाहता था और अब नहीं. So the lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fear. He is panic stricken for being lost. Now he first wants his parents, यानी कि जल्दी से जल्दी. He is afraid and feels unsafe. बहुत ही अनसेफ फील हो रहा था, बहुत ही डरा हुआ था वो, और उसे जल्द से जल्द जो है फ्रिस्ट हम मतलब होते समय सीमा के अंदर, मतलब जल्दी से जल्दी उसे जो है अपने पेरेंट्स चाहिए थे. इसीलिए उसका जो सारा ध्यान था वो इस बात पे था. ओके, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट? सो तुम्हें क्या लगता है कि एंड में क्या होता होगा, कि पेरेंट उसको मिल जाते होंगे उस बच्चे को या नहीं? सो येस, आई फील दैट द child finds his parent at the last. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child, right? So as we all think about only the happy endings after this corona time, so I think they will get they will meet, right? So you can write no also because life is harsh also at the same time. So it is up to you what you want to write down. So I have written a yes over here. So now let us see few word meanings over here.
विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलेज का मतलब होता है कि विंटर सीजन में जो नैरो लेन्स हैं उसकी वो फुल ऑफ शेड है, यानी कि छाँव से हैं, परिपूर्ण है। इमर्ज का मतलब होता है केम आउट, बाहर निकलना। ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी फुल ऑफ समथिंग, यानी कि इस स्टोरी में जो है बच्चा काफ़ी ज़्यादा लाइफ और हैप्पीनेस से ब्रीमिंग ओवर था, राइट। लैग बिहाइंड का मतलब वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाना। फैसिनेटेड बाय का मतलब होता है कि अट्रैक्टेड टू, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना। लाइंड द वे का मतलब होता है वर्ड सेटअप अलॉन्ग द वे, यानी कि उस जगह जो है वो लगे हुए थे, जैसे जो हॉकर्स थे, जो ठेले थे, वो सभी चीज़ें। लिंकरिंग लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है इसका मतलब, यानी कि काफ़ी देर तक। रिसीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड। सप्रेस का मतलब होता है पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना या दबाना। कोल्ड का मतलब होता है जब उसके पेरेंट उसे कोल्ड स्टेयर देते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फीलिंग, इमोशन, कोल्ड, कोल्ड रिएक्शन। सो टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल या फिर ऑपरेसिव रूलर की तरह, जब उसके पेरेंट उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। देन मेल्टेड का मतलब बिकेम टेंडर एंड लविंग। पेल मीन्स डल और कलरलेस, ठीक है। सॉरी, सो गाउडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, काफ़ी ब्राइट कलर, ओके। एब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड फेसिंग द सेम वे, मतलब देखते देखते एक ही तरफ उस तरफ जाना। टीमिंग आउट मतलब टू पोर और एम्प्टी आउट, ओके। ग्रूव का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, स्मॉल वुड, ठीक है, जहाँ पे जो उसके पेरेंट है उसे बुलाते हैं आगे जाके कि आओ बेटा आओ, जब उसे डॉव शो करते हैं, राइट। सो नाउ कीपर्स, कीपर्स क्या होते हैं प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, यानी जैसे ऐसे उछल उछल के चलना ना, उसे कहते हैं कीपर्स। थ्रॉन्ग्स ह्यूज क्राउड, यानी कि काफ़ी बड़ी भीड़। कन्वर्जन का मतलब होता है गैदरिंग, यानी काफ़ी सारे लोग जो इकट्ठे हुए हुए थे। हीटेड का मतलब होता है पेड अटेंशन टू, अटेंशन पे करना किसी चीज़ की तरफ। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है नॉट अलाउड, किसी चीज़ के लिए मना करना या तुम उसके लिए अलाउड नहीं। कोर्स का क्या मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी कि खुश ना होना। हीदर एंड दीदर का क्या मतलब है हेयर एंड देयर, ठीक है। इंटेंटली का क्या मतलब है, इंटेंटली का मतलब है केयरफुली, केयरफुली वो देखते हैं। कंजेस्टेड का क्या मतलब है फुल ऑफ, यानी बहुत सारे लोग, बहुत ही भरा हुआ, भरा भरा, नो स्पेस। नाउ हेफ्टी का क्या मतलब है, हेफ्टी का मतलब है लार्ज एंड हैवी। थर्स्ट का मतलब होता है पुश करना। नॉक्ड का मतलब होता है हिट करना। ब्रूटल मतलब हार्श या फिर रफ। ट्रैम्पल्ड मतलब क्रश्ड। सर्जिंग पावरफुल का मतलब, सर्जिंग मतलब पावरफुल। सूथे का मतलब होता है रिलैक्स और कंफर्ट। प्लीडेड का मतलब है रिक्वेस्ट करना किसी से। डबल पिच्ड स्ट्रीन का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स है, यूसेज ऑफ लॉट ऑफ फोर्स। बोर का मतलब होता है कैरेट। एंड रिटेरिएटेड का मतलब होता है रिपीटेड। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी या अनेबल टू बी कम्फर्ट। चार्ज का मतलब होता है पर्सन और अ थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन, इस तरह से चार्ज करना। नाउ एक और वर्ड में इसमें ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब बेसिकली जो आपकी फूलों की माला होता है, सो दैट इज़, दैट यू कैन राइट rosary, okay. Like here is a picture of rosary also, but of flowers, okay. So this is it, and this is the story which was written by Mulk Raj Anand, one of the great Indian writer. I hope you have enjoyed this story and you have understood the question answer and the word meaning as well. So if you have any query, any doubt, you can just write it down in the comment box. I'll get back to you. Okay, goodbye. We'll meet soon with some new topic. Goodbye.